Hello students and friends. So today we'll talk about catalysis and enzyme action. So this is a very important portion of surface chemistry chapter. So what are we going to talk about in this topic right now is first we'll talk about catalysis, various types of catalysis which might be your autocatalysis, homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis. We'll also talk about what are promoters, inhibitors. ठीक है, आएगा सब कुछ आएगा बारी बारी एक एक करके हर टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा पूरा आईआईटी जेई और नीट हर चीज के लिए पूरी तैयारी हो जाए बेटा. We'll also talk about adsorption theory of catalysis. मतलब various theories हैं which explain what is catalysis, how a catalyst works. तो उनमें सबसे पहले आती है adsorption theory of catalysis, फिर एक आती है chemical theory of catalysis. After catalysis, we also talk about a special type of catalyst जिन्हें हम कहते हैं enzymes. तो enzymes तो हम सबको मालूम है, these are present in our body. तो वो भी हम बात करेंगे in this video only. हाँ, and we definitely we'll talk about as I mentioned पहले भी कि autocatalysis, promoters, inhibitors की भी बात करेंगे और एक स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट की बात करेंगे जो कि होते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. हाँ, जियोलाइट्स. ठीक है, तो उनकी भी हम बात करेंगे. विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम इन दिस करंट वीडियो राइट नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कैटलिस्ट? तो जो कैटलिस्ट की बात आती है बेटा, तो एक रिएक्शन है KClO3 dissociates into KCl and oxygen gas. This reaction is said to proceed at a very slow, at around 653 Kelvin to 873 Kelvin temperature. Okay, but अगर हम इसमें एक foreign substance है like MnO2, if that is added, so it was found that the reaction becomes very rapid even at a low temperature of 473 Kelvin to 633 Kelvin. Now this observation कि भाई क्या हुआ, एक reaction है KClO3, it is dissociating into something. Normally even at a high temperature of roughly 700 Kelvin it is very slow, but in presence of some substance MnO2 the reaction becomes fast even at a lower temperature. So this particular concept was first observed by a scientist by the name of Berzelius. तो Berzelius नाम से एक scientist था. What did he observe? He observed कि भाई there is some foreign substance present in the reaction which has a capability to affect the rate of the reaction. Okay, it has a capability to affect the rate of the reaction or the alter the rate of reaction. ठीक है, alter means change करना. तो यहाँ पे catalyst word उसने coin किया, and a catalyst is substance which can alter the speed of a chemical reaction without itself being used in the reaction. मतलब खुद यूज नहीं होना है, खुद खत्म नहीं होगा, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा. ठीक है, चेंज कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कभी कभी घटा भी सकता है. इसी तरह से अब जब हम आगे कैटालिसिस की बात करते हैं तो कैटालिस्ट जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कि दो टाइप के कैटालिस्ट होते हैं. वन इज अ पॉजिटिव कैटालिस्ट. तो पॉजिटिव कैटालिस्ट जैसा कि एज द नेम इज टेलिंग कि भाई पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है, अ कैटालिस्ट which will be increasing the rate of reaction, a catalyst which will be increasing the rate of reaction. For example, कि अगर हम H2O2 में जैसे पहले भी अभी MnO2 ने क्या किया था, KClO3 का डिकम्पोजिशन को एनहेंस किया था जस्ट इन द प्रीवियस स्लाइड. तो यहाँ भी एक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा बहुत कॉमन है, हमारे घरों में प्रेजेंट होता है H2O2. ठीक है, तो H2O2 डिकम्पोजेस इनटू H2O एंड हाफ O2. तो यहाँ पे जब हम इसका डिकम्पोजिशन को अगर हम और एनहेंस करना चाहते हैं, इफ यू वांट कि इसको इंक्रीज किया जाए, presence of MnO2 makes it faster. Okay, presence of MnO2 makes it faster. We have also studied Contact process. तो Contact process में क्या होता है बेटा, SO2 is oxidized by oxygen in presence of a catalyst V2O5. तो यहाँ पे जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, it oxidizes SO2 as a catalyst. So V2O5 after the reaction ऐसे का ऐसा ही वापस बाहर आ जाता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम
हाइड्रोजन को कंबस्ट करेंगे बेटा, व्हेन वी डू कंबशन ऑफ हाइड्रोजन in presence of platinum as catalyst, the reaction becomes fast. Okay, the reaction becomes fast. Otherwise, we know that this reaction has a very high activation energy, easily नहीं होता ये, लेकिन platinum के होने के presence में ये reaction becomes little fast. फिर इसी तरह से हमारे पास एक हेबर्स प्रोसेस भी होता है बेटा. हेबर्स प्रोसेस is also catalyzed. ओके, तो यहाँ पे इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वी हैव अ कैटलिस्ट आयरन, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक हम एमओ मोलिब्डेनम लिख देते हैं. विल जस्ट डिस्कस इसका मतलब क्या है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर रिएक्शन. तो इस मोलिब्डेनम को हम बोलेंगे प्रोमोटर, आगे बात करेंगे इसका. तो दीज आर द पॉजिटिव कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच एनहांस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट. जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट इसके उल्टे आते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट. तो व्हाट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट बेसिकली क्या होगा, द सब्सटेंस विच विल डिक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, दैट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट. तो ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों जरूरी है? वेयर डू वी वांट आइडियली कि हम चाहें ओके इंटेंशनली टू स्लो अ रिएक्शन. तो समटाइम्स अ रिएक्शन में बी वेरी मच एक्सप्लोसिव, है ना, इट मे बी एक्सप्लोसिव की कंट्रोल करना मुश्किल है हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ पेट्रोल. तो जो भी हमारे पेट्रोल इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, तो उनमें कई बार द कंबशन बिकम सो फास्ट और सो लार्ज कि इट में एक्सप्लोड. उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा देयर आर सम एडिटिव्स उनमें ऐड किए जाते हैं, सो दैट अ कंबशन इज कंट्रोल्ड इनसाइड द इंजन और हमें प्रॉपर एक यूनिफॉर्म आउटपुट मिल सके. तो पहले बेटा पहले देयर वाज अ कंपाउंड कॉल्ड एज टेट्रा इथाइल लेड. ठीक है, तो दैट वाज एडेड टू पेट्रोल टू डिक्रीज द नॉकिंग ऑफ द इंजन. तो नॉकिंग मीन्स वहां पे एक जो एक्सप्लोजन टाइप जैसे नॉइज आता है उसको कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड वाज बीइंग एडेड. बट बिकॉज बेटा लेड हमें पता है थोड़ा पॉइजनस होता है, हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, सो इट हैज बीन रिमूव्ड. एक्चुअली उसके ऑल्टरनेटिव्स निकाले गए हैं. और अभी आप अगर देखते होंगे पेट्रोल पंप्स पे देयर इज ऑलवेज रिटन अनलेडेड पेट्रोल. तो अनलेडेड का मतलब यही होता है कि उसमें लेड नहीं है. पहले डलता था, ठीक है, अब हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, नहीं डालते. बट उसको डालते क्यों थे? टू प्रिवेंट नॉकिंग, ताकि एकदम से शार्प कोई एक्सप्लोजन ना हो इंजन के अंदर, उसको कंट्रोल करने के. तो देयर वी नीड सम सब्सटेंसेस टू कंट्रोल द रिएक्शन. ठीक है, उसको पकड़ के रखने के लिए. इसी तरह से जैसे हमने अभी H2O2 की बात की, दैट H2O2 इट डिकम्पोजेस रेडिली इनटू H2O एंड ऑक्सीजन गैस. बट अगर हमने स्टोर करके रखा है बेटा, वी डोंट वांट इट टू जस्ट कीप ऑन डिसोशिएटिंग इनटू ऑक्सीजन गैस, बिकॉज उससे तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा वो दैट विल चेंज. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट इज डन कि हम H2O2 के सोल्यूशन में उसमें फॉस्फोरिक एसिड या ग्लिसरॉल, ओके, एनी वन इज एडेड, ओके, दैट एक्ट्स लाइक अ नेगेटिव कैटलिस्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको जो डीकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ. इसके अलावा क्लोरोफॉर्म एक कॉमन आपने सुना होगा, CHCl3. इट्स अ वेरी कॉमन केमिकल फाउंड इन एनी केमिस्ट्री लैब. ठीक है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस करने में काम आता है. बट अगर इफ इट इज केप्ट ओपन तो ये पड़ा पड़ा COCl2 बन जाता है, विच इज फॉस्जिन. तो होता क्या है केमिस्ट्री लैब में बेटा, तो केमिस्ट्री लैब में क्लोरोफॉर्म इज अ वेरी कॉमन सॉल्वेंट. अगर पड़ा रहेगा बाय एयर इटसेल्फ इट कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फॉस्जीन, एंड फॉस्जीन इज अ हाईली पॉइजनस गैस. तो क्या हो जाएगा, जितने भी रूम में वहाँ पे लैब में साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उनके लिए हार्मफुल है. या इस तरह से कहीं भी और इन्वायरमेंट में है तो इट इज वेरी हार्मफुल कि फॉस्जीन इज मोर डेंजरस देन क्लोरोफॉर्म इटसेल्फ. तो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के उस कंटेनर में क्या है, यहाँ पे 1% इथेनॉल ऐड होके आता है. तो 1% इथेनॉल इज एडेड टू प्रिवेंट इट्स कन्वर्जन इनटू फॉस्जिन. मतलब बेसिकली क्या करता है, ये उसकी कन्वर्जन को बहुत स्लो कर देता है. बंद नहीं होता है लेकिन बहुत बहुत स्लो हो जाता है, जो जिसके कारण कि जब तक वो होगा तब तक हम क्लोरोफॉर्म को यूज कर लेंगे उससे पहले. तो दीज अबाउट नेगेटिव कैटलिस्ट. नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज होगा
wherever we want to control the oxidation or control some any type of reaction. Even if you remember, तो सोचो जो भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, दे प्रिजर्व द फूड और वट एवर सब्सटेंस वी एड देम इनटू, तो वहां पे उसका डिके को स्लो करते हैं, तो वो भी एक तरीके से नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं फॉर वट एवर प्रोसेस दे आर स्टॉपिंग. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आफ्टर नेगेटिव कैटलिस्ट इज ऑटो कैटालिसिस. ऑटो कैटालिसिस क्या है? अब ऑटो कैटालिसिस मतलब ऑटो मीन्स अपने आप, ठीक है. तो व्हेन एनी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट खुद ही अपना कैटलिस्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट इज इटसेल्फ अ कैटलिस्ट, then it is called as an autocatalysis. So when one of the product acts as a catalyst, such reactions are known as autocatalysis. ठीक है. तो ऑटोकैटालिटिक रिएक्शंस मतलब जैसे कभी अगर कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, ऐसे जस्ट जनरल कोई एग्जांपल है, और अगर ये C ही कैटलिस्ट है बेटा, तो क्या होगा, इनिशियली क्योंकि बिल्कुल भी C नहीं था, the rate of autocatalyzed reaction will be very slow because there was no presence of C. C means catalyst, ठीक है. बट जैसे धीरे धीरे more and more product is formed, means more and more C is there, more and more catalyst is there, तो reaction क्या हो जाएगा, फास्ट होता रहेगा, ठीक है. with passage of time the reaction will become fast, ठीक है. तो यहाँ पे जब हम autocatalysis reactions की बात करते हैं, these reactions are slow in the beginning but become increasingly fast as the reaction proceeds. So there are many examples of autocatalysis reaction as well. तो सबसे पहले आता है बेटा decolorization of KMnO4 by oxalic acid. तो टाइट्रेशन है बहुत कॉमन, आपने लैब में किया होगा या करने वाले होंगे. तो वहां पे क्या होगा, हम ऑक्सैलिक एसिड को KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं, तो धीरे धीरे द कलर ऑफ KMnO4 विच इज पर्पल वो डीकलराइज हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन का बात करेंगे, देन KMnO4 प्लस oxalic acid in acidic medium gives MnSO4 plus K2SO4 plus H2O and CO2. अगर हम रिएक्शन को बैलेंस कर दें तो दिस विल बी जस्ट 2K2SO4 5H2C2O4 3 2 8 10. तो यहाँ पे जो मैंगनीज 2 पॉजिटिव है, दिस MnSO4, दिस एक्ट्स लाइक अ ऑटो कैटलिस्ट. तो यही प्रोडक्ट बना और यही खुद एक ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है इन दिस रिएक्शन, ठीक है. अनदर रिएक्शन लाइक दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कोई भी एस्टर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COO C2H5, तो हम इथाइल एसीटेट को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इट फॉर्म्स CH3COOH प्लस C2H5OH. तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है बेटा, इसका जो ये H पॉजिटिव आयन है, दिस H positive from acetic acid will act like a autocatalyst. Okay, so this H positive from your acetic acid formed will be acting like an autocatalyst. तो ये सभी दोनों रिएक्शंस क्या हैं, हमारे कुछ रिएक्शंस हैं आउट ऑफ मैनी फॉर ऑटोकैटालिसिस. तो ऑटोकैटालिसिस में क्या है, one product will act like a catalyst. Next we'll talk about another specific term which is promoter. What is a promoter? तो promoter नाम से सुनने में क्या लगता है कि प्रमोट करना, है ना, उठा के ऊपर रखना. तो मतलब ये क्या होता है, ये कैटलिस्ट के कैटलिस्ट है. So these are the catalysts of the catalyst. They basically are helping the catalyst to do good work. तो a substance which itself not act as a catalyst, तो खुद reactant से कोई काम नहीं इनका. ध्यान दो, इनका reactant या product से कोई लेना देना नहीं है. इनका किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ catalyst से. So the substances which itself they do not act like a catalyst, but their presence can increase the catalytic activity of a catalyst.
वो एक कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्रमोटर। तो फॉर एग्जांपल एक कॉमन प्रमोटर है, हमने पढ़ा है ग्रुप 15 में कॉन्टैक्ट हेबर्स प्रोसेस में, कि भाई अमोनिया का जो सिंथेसिस है उसमें वी हैव आयरन एज अ मेजर कैटलिस्ट है, ठीक है। बट आयरन के साथ क्या करते हैं, मोलिब्डेनम को भी यूज करते हैं। तो मोलिब्डेनम एक्ट्स लाइक अ प्रोमोटर। तो प्रोमोटर बेसिकली इट हेल्प्स अ कैटलिस्ट बिकम मोर एक्टिव। ऐसा करता कैसे प्रोमोटर, प्रोमोटर बेसिकली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि प्रोमोटर इंक्रीजेस surface area of catalyst, due to which it is able to increase the rate of catalysis or the activity of the catalyst। कैसे, जस्ट उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करके। जैसे निकल है तो यहाँ पे किसी भी वेजिटेबल ऑयल को जब हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेट करते हैं वी गेट घी, एंड हेयर कॉपर एक्ट्स लाइक अ promoter, it acts like a catalyst of the catalyst here, ठीक है। these are basically catalyst for the catalyst promoters। और इन्हीं के एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट देर आर सब्सटेंसेस जिनको हम बोलते हैं इनिबिटर्स और कैटालिटिक पॉइजन। तो व्हाट आर इनिबिटर्स, इनिबिटर्स आर सब्सटेंसेस जिनकी प्रेजेंस से अ कैटलिस्ट फंक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। सब्सटेंस हुज प्रेजेंस डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज अ कैटालिटिक पॉइजन। तो पॉइजनिंग बेसिकली करते क्या है, पॉइजनिंग में क्या होता है, वो कैटलिस्ट के पास पॉइजन जाता है, दैट सब्सटेंस गोस एंड उसको रोकता है टू डू कैटालिसिस। इट माइट बी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम सरफेस कंपाउंड, वो खुद जाके जो पॉइजन है वो सरफेस पे खुद एड्सॉर्ब हो जाएगा, रिएक्टेंट को होने नहीं देगा। तो उससे क्या हुआ, हम उसे बोलेंगे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन यहाँ पे पहले से एड्सॉर्ब्ड है, तो कोई भी रिएक्टेंट आएगा वो यहाँ पे इजीली एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक पॉइजन ने कैटलिस्ट का काम करने से रोक दिया। तो दिस इज व्हाट पॉइजनिंग ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। तो जैसे इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इफ यू रिमेंबर, वी स्पेसिफिकली टेक मेजर्स इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू रिमूव आर्सेनस ऑक्साइड। तो आर्सेनस ऑक्साइड को जब हम अगर प्रेजेंट होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारे जो गैशियस मिक्सचर में, तो इट विल एक्चुअली पॉइजन प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो प्लैटिनम कैटलिस्ट हम सबको मालूम है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो वी डोंट वांट दैट कैटलिस्ट टू कम एनी वे क्लोज टू आर्सेनस ऑक्साइड। तो क्या करेंगे, उसको पहले ही वहां से निकालना पड़ता है। तो इस तरह से दैट इज अ पॉइजन। और एक कॉमन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है विच इज यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट। तो लिंडलास कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, ओके, लेट वी हैव एन एल्कीन, और इसको हम हाइड्रोजिनेट करते हैं सिर्फ पैलेडियम के साथ, तो वी गेट एन एल्केन, ओके, वी गेट एन एल्केन। लेकिन अगर हमारे पास लिंडलास कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, तो लिंडलास कैटलिस्ट क्या है, पैलेडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट पॉइजन विद सल्फर और क्विनोलिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लिंडलास कैटलिस्ट है, देन our reaction stops only at alkene। तो alkyne is reduced only to alkene, not alkane। तो वो कंट्रोल्ड रिडक्शन है यहाँ पे। दैट इज ओनली पॉसिबल अगर हम कैटलिस्ट को पॉइजन करेंगे, मतलब कैटलिस्ट में कुछ साइट्स आर नॉट वर्किंग, सम एडसॉर्प्शन साइट्स आर already taken up by the poison। So this is your inhibitor or a catalytic poison। Then there are various types of catalysis. Then there is a various type of catalysis based depending upon solubility of
catalyst and reactant. So based upon the solubility of the catalyst and reactants, there are two types of catalysis. One is homogeneous catalysis. So homogeneous catalysis may we have various processes. First of all, what is homogeneous catalysis? So homogeneous catalysis is the catalysis where the catalyst and the reactants are in the same phase. Same phase मतलब सभी के सभी liquids हैं, सभी के सभी gaseous हैं, etc. For example, in lead chamber process. तो lead chamber process, ठीक है, तो contact process का alternate process है बेटा lead chamber process. This is also used for manufacturing sulfuric acid. यहाँ पे we oxidize SO2 in presence of catalyst NO. So NO is a gas. Okay, in presence of NO. और एक और एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. तो केन शुगर इज बेसिकली C12H22O11. When this cane sugar in aqueous medium is hydrolyzed, so we get two products. One is glucose, other is fructose. Both have formula beta C6H12O6. ठीक है, so this is what inversion of cane sugar is. So inversion of cane sugar produces two products, but and all of them are in aqueous medium. All of them are in aqueous medium. And similarly, if an ester is hydrolyzed in acidic medium, if an ester is hydrolyzed in acidic medium, for example CH3COO C2H5, is aqueous plus H2O, so this can form CH3COOH plus C2H5OH. ये क्या बनाएगा बेटा? Completely aqueous, completely liquid solutions will be there. ठीक है, तो all the element, all the compounds, all the reactants, all the products and even the catalyst, तो catalyst क्या था यहाँ पे? H positive, वो भी aqueous medium में है. They are in the same medium. So this is what homogeneous catalysis is. Next we have heterogeneous catalysis. तो heterogeneous catalysis क्या है? Where the catalyst and the reactants are in different phase. So catalyst and the reactants are in different phase. For example, contact process. तो contact process में क्या होता है बेटा? Contact process SO2 gaseous plus O2 gaseous. कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है? V2O5 which is solid. ठीक है, तो यहाँ पे we will get SO3. This is also gaseous. So the phase or the state of the catalyst and the reactants is different. तो यहाँ पे क्या होगा? Heterogeneous catalysis. Then Haber's process. Haber's process में क्या है? Nitrogen and hydrogen, they are both gases. They react in presence of iron as a catalyst with molybdenum as promoter to form ammonia. तो जो Haber's process है, it is also an example of heterogeneous catalysis. Then we have Dakin's process. Dakin's process बेटा group 17 में we will study कि its process of manufacturing chlorine gas. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? HCl gas is oxidized to H2O and chlorine gas in presence of CuCl2 as catalyst. So CuCl2 is solid, and there are many more examples of heterogeneous catalysis. So these are some examples here. ठीक है, तो ध्यान रखना है homogeneous and heterogeneous basically they just are based upon the solubility of catalyst and the reactants with each other. ठीक है, if all of them are gases, all of them are liquids, तो वो क्या है?
होमोजीनियस, इफ ईदर वन ऑफ देम इज डिफरेंट देन उसे वो क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस।